Good morning, children. Today we are going to continue with the types of function. As yesterday we have finished with the built-in functions. So today we are going to start with the functions defined in modules. Actually, we have three types of functions, out of which the first type of function, which we said they are the built-in functions, means they are available whenever the Python is installed. We have to use those functions as it is, which are basically also called as the reserved words or the keywords also. Now here we are saying the word as module. Module means whatsoever the function I am going to use in my program, it's compulsory for that I should import the file. In short, I'll explain you one thing. अगर मान लो मुझे इंग्लिश के अंदर कुछ वर्ड ढूंढना है तो मुझे इंग्लिश की डिक्शनरी चाहिए. अगर मुझे हिंदी शब्दकोश में से कुछ ढूंढना है तो मुझे हिंदी की डिक्शनरी चाहिए. साइंस का अगर मुझे कुछ फाइंड करना है टेक्निकल टर्म को तो आई हैव टू यूज द साइंस डिक्शनरी. सेम वे हमारे पास कुछ फंक्शंस होते हैं जिनको यूज करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक इनबिल्ट लाइब्रेरीज होती हैं. दोज इनबिल्ट लाइब्रेरीज आर कॉल्ड एज माय मॉड्यूल्स. अब एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम सबसे पहले. एक्चुअली ये तीन मेथड्स होते हैं आपकी फाइल्स मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करने के लिए. आज हम सबसे पहला मेथड यूज करें, दैट इज द इंपोर्ट स्टेटमेंट. हाउ दिस कैन बी यूज्ड? दिस कैन बी यूज्ड फॉर एग्जाम्पल. वी आर टेकिंग अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल लाइक मैथ डिक्शनरी. सपोज आई वांट टू यूज एनी ऑफ द मैथमेटिकल फंक्शन. It is compulsory that I should write import maths first. This way what it will do is in its memory math के जितने भी हमारे वो होंगे functions होंगे, they all will be included in the math dictionary and I can use them directly with their names, right? For example, the first example, very simple one, is your sqrt function. Suppose if I want to find the square root of any number, what can I do is I have to write first of all import math, and after that I have to write print math dot sqrt within my brackets the number whose square root I want. Like math dot sqrt 25 will give me the output as 5, where 5 means it is the square root of a 25 number, right? Now next I'm using the math function only, that is the ceil function, where ceil says that it will returns you the smallest integer, but that smallest integer should be greater than or equal to the value x, which I am putting in my ceil function. For example, if I say print math dot ceil into 3.4. Into 3.4 means this is the number whose the ceil value I want to display. I said that it is the smallest integer return करेगा, लेकिन वो smallest integer greater than किससे होना चाहिए? x से. अगर मैं यहाँ पे integer value देखूँ तो मेरी integer value 3 है, तो इसका अगर smallest return करेगा that should be greater than x, का मतलब हो जाएगा ये 3 का मुझे क्या return करेगा? 4 return करेगा. Same way, if I take the negative number in my ceil function, what it is going to do is minus 3.4. Minus 3 means अगर मैं ये return मुझे क्या करेगा? -2. Why? Because negative में जितनी smallest value होती है उतनी वो greater होती है, right? यहाँ -3 है तो इसको मेरे को return क्या करना है? Smallest integer करना है, but वो smallest integer मेरे x value से greater होना चाहिए, और x value से greater कौन होगा? -2. इसका बिल्कुल रिवर्स होता है फ्लोर फंक्शन, एंड दिस फ्लोर फंक्शन सेज दैट इट विल रिटर्न द लार्जेस्ट इंटीजर, बट दैट इंटीजर विल बी लेस देन और इक्वल टू योर x. Now for example, if I say that math dot floor within my brackets minus 45.17, it will return me minus 46. I said returns the largest number, but that number should be less than किससे होना चाहिए? और equal to मेरी value से. Suppose my value is minus 45, तो 45 का smallest number क्या हो जाएगा? minus 46. Same way, if I use a positive number in it, that is 100.12, it will return me the value as 100, because it can return the value equal to also. Now next, suppose अगर वो मेरा value point decimal के बाद 5 या 5 से ज्यादा होता है, even then it will return me the value as 100. Now next function for the math module is your POW function, which means it returns the value when we want the raised to the power of any number, then we'll use the POW function, right? Suppose if I want 3 raised to the power 3, then it will return me the value as 27, and if I want the power of any number, then I'll use print math dot POW 3, 3. It will display me the value as 27.0.
Next is math. If I'm writing pop 3, 0 means any number whose part is 0 is in maths also it is always 1, so it will return the value as 1.0. The next function is fabs function. Returns the positive or the absolute value means जैसे मैथ्स के अंदर किसी भी चीज का मॉड्यूलस निकालते हैं, मॉड्यूलस मॉड ऑफ 5 निकालो तो द वैल्यू इज ऑलवेज 5. नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए मॉड का यूज करते हैं. दिस मॉड इज कॉल्ड एज माय फैब्स. नाउ वो कहते हैं प्रिंट मैथ डॉट फैब्स माइनस 10 विल गिव मी द वैल्यू एज माय 10. देन इफ आई यूज मैथ फैब्स 10 पॉजिटिव वैल्यू दूंगी तो भी वो मुझे क्या करेगा, 10 रिटर्न करेगा. बिकॉज एनी हो फैब्स का काम होता है कोई भी नेगेटिव वैल्यू है उसको कन्वर्ट कर देना, दैट इज इनटू पॉजिटिव. Next functions we are having, that is the log 10 function, where logarithmic value अगर मुझे calculate करनी है with the base of 10, then I use the log function. For example, I am taking print math dot log 10 into 100 means I want to find the log value of 100 with the base value as 10. Then it will display me the value as 2.0. Next is trigonometric functions cos, sine and tan. For all these values, it will return the value of all thetas in radians. How? Like suppose if I'll say print math dot cos 3, it will return me the value like this. And अगर मैं sin, cos और tan में कोई भी जीरो वैल्यू निकालती हूँ तो जो भी इन रेडियंस में हमारी जो वैल्यूज होगी वो रिटर्न बैक करता है. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नॉर्मली हम लोग जो यूज करते हैं वो अपना एक रेगुलर रूल्स की फॉर्म में करते हैं, जैसे 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री वो सब करते हैं. इफ यू विल पुट द थीटा एज 45 डिग्री हियर, इट विल नॉट गिव यू द एग्जैक्ट वैल्यू व्हिच यू गेट इन द मैथमेटिक्स. इट विल रिटर्न यू द वैल्यू इन रेडियंस. दैट इज ओनली द डिफरेंस बिटवीन द साइन कॉस टैन इन योर पाइथन एज वेल एज इन योर normal mathematics which you use it, right? But make sure if you want to use any of these functions, whether it is a fabs function, cos function, log function, sine, cos or tan function, for using all these functions, it is compulsory that in the beginning of all this, you should have the file named as import math. If you will be importing the math module before all these functions, then only it will return you the values or it will evaluate the functions, otherwise it will give you the error. Now the next we are going to import the second module which is called as your import random. Here the word is random, as the name indicates. Random means to generate the random numbers. Suppose like you can say it is just like the probability. आपके पास दो नंबर्स गिवन है, आप उनके बीच में कितने कॉम्बिनेशंस आप बना सकते हो. इस तरह से अगर मुझे अपनी वैल्यूज को जनरेट करना है तो मैं क्या यूज कर सकती हूँ, आई कैन इम्पोर्ट द रैंडम मॉड्यूल हियर. और रैंडम मॉड्यूल से हम लोग सबसे पहला फंक्शन विच इज कॉल्ड एज माई रैंडम फंक्शन कैन बी यूज्ड, जिसका पर्पस क्या होता है, टू रिटर्न द रैंडम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर. सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये कौन से नंबर्स रिटर्न करता है. रैंडम नंबर तो जनरेट करेगा, लेकिन कौन से वाले जनरेट करेगा, फ्लोटिंग पॉइंट वाले, राइट. फ्लोटिंग पॉइंट मीन्स द नंबर्स विद डेसिमल वाले. और इसके लिए रेंज स्पेसिफिक होती है. यू कैन नॉट चेंज द रेंज बाय योर ओन. आपकी रेंज हमेशा क्या रहेगी, 0.0 से लेकर के 1.0 के बीच में ही ये रैंडम नंबर सारे जनरेट करेगा, राइट. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कमांड दिया इम्पोर्ट रैंडम एंड आफ्टर दैट मैंने लिखा प्रिंट रैंडम डॉट रैंडम फंक्शन, देन इट विल डिस्प्ले द वैल्यू इन बिटवीन 0.0 to 1.0. और जो वैल्यू जनरेट होगी वो हमेशा 1.0 से लेस देन मीन्स 0.9999 तक की देगा मुझे, ठीक है. सो रैंडम नंबर जनरेट हो गए, बट ये जरूरी नहीं है कि मैं रैंडम फंक्शन यूज कर रही हूँ तो मैं सिर्फ 0.0 से लेकर 1.0 के बीच में रैंडम नंबर जनरेट कर सकती हूँ. मैं अपनी विश से भी कुछ रैंडम नंबर्स जनरेट कर सकती हूँ. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे रैंडम नंबर्स जनरेट करने हैं 15 से लेकर 15 से लेकर 35 के बीच में, लेकिन उन्हें फ्लोटिंग पॉइंट चाहिए, मतलब 15.1 भी हो सकता है, 15.2 भी हो सकता है. एनी रैंडम नंबर इफ आई वांट टू जनरेट, देन आई हैव टू यूज माय रैंडम फंक्शन लाइक दिस, रैंडम डॉट रैंडम फंक्शन, राइट, वेयर रैंडम फंक्शन विल इंडिकेट फॉर 0.0 से लेकर 1.0 तक, राइट. क्योंकि इसकी रेंज तो यही है, इसके बिना इससे अबव इससे बिलो वो वैल्यू प्रिंट नहीं करता. अब मेरी रेंज थी 15 to 35, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप मल्टीप्लाई करिए रैंडम फंक्शन को अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के साथ और ऐड कर दो लोअर लिमिट को.
So it will become a formula for generating the random numbers between 15 to 35. Now how it works? Suppose if the range is 0.0 to 1.0, right? So हम इनमें से कोई भी एक नंबर ले लेते हैं इसी रेंज के बीच में. Suppose I have taken the value as 0.0. Now multiplied by कितना हो जाएगा? 35 minus 15 कितना हो गया? 20. So 20 multiplied by 0.0 is 0.0 प्लस क्या हो गया? 15 which is equal to 15.0. It means जो random number generate हुआ वो मेरा कितना हुआ? 15.0 generate हुआ. अब हाईएस्ट वैल्यू मैंने 35 करी थी और इसकी हाईएस्ट वैल्यू कितनी है? 1. सो 1.0 मल्टीप्लाइड बाय अगर मैं 20 करूं सो इट विल रिटर्न मी द वैल्यू एज 20.0 प्लस अगर 15 करूंगी तो इज इक्वल टू कितना आ गया? 35.0. नाउ 15.0 से लेकर के 35.0 के बीच में कोई भी रैंडम नंबर अगर मुझे जनरेट करना हो, कोई भी रैंडमली मुझे नंबर लेना है तो आई कैन यूज दिस फॉर्मूला. नाउ इन योर बोर्ड एग्जाम्स यू गेट द क्वेश्चन. दो तरह से ये क्वेश्चन आता है. एक वो आपसे पूछता है, क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट होता है जिसमें वो पूछता है नेम द मॉड्यूल इन विच ऑल दीज फंक्शंस आर इन्वॉल्व. सपोज सील फंक्शन अगर उसने दिया और वो कहता है राइट एन मॉड्यूल फॉर इट, तो उसका कौन सा मॉड्यूल आपको इम्पोर्ट करना पड़ता है? मैथ मॉड्यूल. लेकिन अगर उसने बोला रैंडम फंक्शन के लिए आप कौन सा मॉड्यूल इम्पोर्ट करोगे? द आंसर विल बी रैंडम मॉड्यूल यू विल बी importing before using this function, right? Now ये random number generate करने का एक क्वेश्चन पेपर में आता है. पेपर में ये क्वेश्चन इस फॉर्म में आएगा, टू जनरेट द रैंडम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बिटवीन द रेंज लोअर टू अपर यूजिंग द रैंडम फंक्शन. फॉर एग्जाम्पल टू जनरेट द रैंडम नंबर्स बिटवीन 15 to 35. तो आपको ये लिख के दिखाना है जिससे वो क्या करेगा? रैंडम नंबर जनरेट कर देगा. Now next random function is your rand int. Means if I want to have the integer values in my random routine, मतलब random number generate करना है लेकिन integer type का return करना है, then I use the rand int a comma b. This is the range from and where, मतलब to how much, right? But make sure that both these values limits are inclusive in it. Start value and the stop value, both of them are inclusive. अगर मुझे 15 से 35 के बीच में कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करना है तो फॉर जनरेटिंग दैट रैंडम नंबर आई यूज रैंडम डॉट रैंड int 15,35, right? It can return even 35 also. That is the last limit which is inclusive in this function, right? Now next one is your uniform a comma b. where uniform means अभी मैंने आपको बताया था कि रैंडम फंक्शन जो होता है वो 0.0 से लेकर 1.0 के बीच में फ्लोटिंग रैंडम नंबर्स जनरेट करता है. लेकिन अगर मुझे किसी रेंज के बीच में फ्लोटिंग पॉइंट रैंडम नंबर्स जनरेट करने हो तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया. नाउ इंस्टेड ऑफ यूजिंग द फॉर्मूला आई कैन यूज द फंक्शन ऑल्सो फॉर जनरेटिंग द रैंडम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स. For that is uniform a comma b, which returns the random floating point number in the given range. For example, random dot uniform 11 comma 55. It means it takes the random numbers from 11.0 से लेकर के 55.0 के बीच में जितने भी random numbers होंगे, decimal वाले, without decimal वाले, they all are inclusive. Now rand range का meaning क्या होता है? It can give you the random numbers in a given specified range. Right? Here we can take even the step value also. For example, we say that return randomly selected elements from range that is start, stop and step. अगर मैंने कमांड दिया random dot rand range, it will take the values 23, 47, 3. It means the random numbers will start generating from 23 till 45, 47 का मतलब हो गया 46 तक लेगा. लेकिन जितने भी रैंडम नंबर्स जनरेट होंगे वो 3 की स्किप में लेगा हमेशा, राइट? अगर उसने 23 से उससे स्टार्ट करे तो नेक्स्ट नंबर जो रैंडम वाला जनरेट होगा वो 26 होगा. फिर उसके बाद जो होगा वो 29 होगा. 29 के बाद नेक्स्ट 3 नंबर्स का जो स्किप नंबर होगा वो 47 तक इस तरह से स्किप्ड नंबर्स को मेरे को रैंडम नंबर्स में शो करेगा. अगर मैंने कमांड दिया है random dot rand range 235, here I have not specified the starting range and I have not specified the step value. So start range will be 0. It will start the random numbers from 0 and it will take the step value as 1. Next function is your choice function, which also comes under your random module.
which means that you can generate the random numbers in a sequence, right? Suppose मेरे पास कोई sequence given है, चाहे वो sequence मेरी list की है, tuple की है, string की है, अगर मुझे उसमें से कोई एक random number pick up करना है, randomly कोई value pick करनी है किसी list में से, तो what can I use is I can use the choice function here. For example, if I'm saying import random, then I'm saying direction is equal to random dot choice, and within my brackets I have taken a list of strings, right? मैंने कहा 1 for east, 2 for west, 3 for north and 4 for साउथ, और ये मेरी क्या जनरेट करी है, मैंने लिस्ट जनरेट करी है which contains the string value in it, right? Now if I say print my direction comma direction, तो ये मेरे को आउटपुट वैल्यू में कोई भी डायरेक्शन दे सकता है. सपोज मैंने फर्स्ट टाइम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया और उसने मुझे आंसर दे दिया 3 नॉर्थ. नेक्स्ट टाइम दोबारा सेम यही प्रोग्राम है, अगर मैं इसे दोबारा से वो करती हूँ, एग्जीक्यूट करती हूँ, हो सकता है वो मुझे नेक्स्ट वैल्यू 4 साउथ दे दे, वो 1 ईस्ट दे दे, वो दोबारा से हो सकता है 3 नॉर्थ दे दे. बट यहाँ चॉइस का मतलब हो गया गिवन लिस्ट में से कोई भी एक नंबर अपने आप अपनी मर्जी से वो चूज कर लेता है, कोई भी रेंडमली वैल्यू को पिक कर लेता है लिस्ट में से, right? Now next and the last function of your random is shuffle function. जिसका मीनिंग क्या होता है? Its name itself is telling you shuffle means arrange, rearrange कर देना, राइट? या हम इसको कहेंगे स्वैपिंग द वैल्यूज, राइट? अगर मान लो मैंने कोई एक लिस्ट क्रिएट करी है, लेट दैट लिस्ट इज फ्रूट इज इक्वल टू एप्पल, मैंगो, बनाना, ऑरेंज, राइट? तो ये मेरी एक लिस्ट है और इसमें मैंने कुछ फ्रूट्स के नाम लिखे हैं. अगर मैं उसे कमांड दे देती हूँ रैंडम डॉट शफल फ्रूट्स, तो वो मुझे क्या करेगा, इन फ्रूट्स के नाम को शफल करके दे देगा. अब वो शफल कैसे करेगा? शफल वो उसकी मर्जी है, वो कैसे करेगा, वो जैसे मर्जी शफल कर सकता है. हो सकता है लास्ट 2 वैल्यूज को पहले ले ले, सेकेंड वैल्यू को फिर ले ले, फिर उसके बाद एप्पल ले ले, राइट? या हो सकता है पहले मैंगो ले ले, फिर उसके बाद आपका ऑरेंज ले ले, फिर बनाना ले ले, फिर ऑरेंज ले ले. मतलब कोई भी शफल्ड फॉर्म में आपको लिस्ट को डिस्प्ले करके दिखा देगा, which means the swapping of the list values. I'm taking one practice question based on our functions, random functions which we have taken. Actually ये question बोर्ड एग्जाम में जरूर पर जरूर आता है. क्वेश्चन नंबर 1 का जो F पार्ट होता है, लास्ट पार्ट होता है, वो यही होता है. ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है, आउट ऑफ विच इसमें 2 क्वेश्चंस गिवन है. वो कहते हैं व्हाट विल बी द पॉसिबल आउटपुट और आउटपुट्स, मतलब नीचे आंसर में 4 आउटपुट गिवन है पॉसिबल वाले. आउट ऑफ 4 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, और हो सकता है 4 में से कोई भी ना हो. तो एक तो क्वेश्चन हो गया, एक नंबर में आपके पास आउटपुट क्या होता है, और सेकेंड आपके पास हो गया ऑल्सो स्पेसिफाई द मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यू असाइन टू द वेरिएबल टू एंड फ्रॉम. टू और फ्रॉम 2 वेरिएबल्स हैं, हाफ ऑफ मार्क्स ईच क्वेश्चन है कि मैक्सिमम वैल्यू 2 में और मिनिमम वैल्यू फ्रॉम में कितनी आएगी, ये हमको बतानी है, राइट? नाउ क्वेश्चन क्या गिवन है, इंपोर्ट करो रैंडम को, बिकॉज इट इज गोइंग टू यूज rand.int, तो पहले रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट करना कंपल्सरी हो गया. अब एक लिस्ट गिवन है AR के अंदर विच कंटेन्स द एलिमेंट एज 20, 30, 40, 50, 60, 70. नाउ फ्रॉम में वो कह रहा है random डॉट rand.int 1,3. As we know that rand.int फंक्शन क्या करता है, it returns the integer values in a given range, but उसके अंदर it is inclusive of both the ranges. मतलब लोअर वाली भी और अपर वाली भी जो आपकी रेंज होती है वो इंक्लूसिव होती है. इट मीन्स उसने पूछा था मैक्सिमम वैल्यू किसकी बतानी है, 2 की, और मिनिमम वैल्यू किसकी बतानी है, फ्रॉम की. तो अगर मैंने फ्रॉम में देखूं तो मेरी इसमें मिनिमम वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, 1. तो आंसर में हम क्या लिखेंगे, मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रॉम इज इक्वल टू 1, राइट? एंड नेक्स्ट कुछ बोला उसने, 2 इज इक्वल टू रैंडम डॉट rand.int 2,4. 2,4 का मतलब हो गया स्टार्ट वैल्यू 2 हो गई, एंड वैल्यू 4 हो गई. 4 इज इंक्लूसिव, सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2 कितनी हो जाएगी मेरी, दैट विल बी इक्वल टू 4. तो एक नंबर तो हमें यहीं से मिल जाता है, रेस्ट पार्ट रह जाता है आउटपुट निकालने वाला. अब आउटपुट कैसे निकालेंगे, इसमें लिखा है फॉर k इन रेंज फ्रॉम. फ्रॉम का मतलब हो गया स्टार्ट वैल्यू देनी है. अब मेरी स्टार्ट वैल्यू जो ले रहा है वो फ्रॉम से ले रहा है, तो फ्रॉम के पास मेरे पास फ्रॉम में कौन कौन से नंबर्स हैं, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है. मींस अगर वो स्टार्ट कर रहा है वो 1 से भी स्टार्ट कर सकता है, 2 से भी स्टार्ट कर सकता है, 3 से भी स्टार्ट कर सकता है. अब उसने एंड वैल्यू मेरी क्या ली, 2 + 1, तो 2 की मेरी वैल्यू क्या है, 2 से लेकर के 4 तक. इट मीन्स 2, 3, 4 हो गया.
अब 2 + 1 करूंगी तो 3 हो गया, 3 + 1 करूंगी तो 4 हो गया, 4 + 1 करूंगी तो 5 हो गया. So this becomes 3, 4 and 5. It means it will stop the value till 3 तक भी stop कर सकता है, 4 तक भी और 5 तक भी. अगर वो 1 से स्टार्ट करेगा तो वो 3 पे खत्म करेगा, 2 से स्टार्ट करेगा तो 4 पे खत्म करेगा, 3 से स्टार्ट करेगा तो 5 पे खत्म करेगा. लेकिन अब ये फॉर लूप चल रहा है, इसका मतलब जो भी लास्ट वैल्यू होगी उससे एक कम तक चलेगा. मींस अगर उसने फ्रॉम 1 स्टार्ट करा है, लेस देन 3 तक जाएगा, तो लेस देन 3 का मतलब होगी 1 और 2. 1 और 2 का मतलब दो नंबर्स यहाँ कहीं भी नहीं दे रहे. इट मींस इसकी फ्रॉम वैल्यू 1 नहीं हो सकती. अब अगली बार उसने क्या लिया, 2 से लेकर 4 तक ले लिया, 2, 3 वो भी नहीं हो सकता, 3 स्टार्ट करे तो 3, 4 वो भी नहीं हो सकता. इट मींस इट कैन टेक दिस फ्रॉम वैल्यू एज 2, 1 और 2 वैल्यू में वो इनमें से कोई भी एक नंबर ले सकता है. फर्स्ट नंबर पॉसिबल नहीं है, इसलिए फ्रॉम अगर वो 1 से कर रहा है, इट कैन बी टिल 4 ऑल्सो, तो आ जाएगा 1, 2, 3. अब मेरी प्रिंट मुझे क्या करना है, AR3 केयर पोजीशन. तो केयर पोजीशन में जब मेरी फ्रॉम वैल्यू 1 होगी तो मेरी स्टॉप वैल्यू मेरी 4 भी हो सकती है. 4 का मतलब हो गया 1, 2, 3. तो ये मेरी वैल्यू 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है. अब इट मीन्स ये वैल्यू कहाँ से प्रिंट करेगा. एक बात क्लियर है कि जब भी वो प्रिंटिंग स्टार्ट करेगा, इट विल स्टार्ट प्रिंटिंग फ्रॉम 1 से प्रिंट स्टार्ट करने का मतलब वो वैल्यू हमेशा क्या से शुरू करेगा, 30 से. अब यहाँ पे सबसे पहला नंबर 30 कहाँ आ रहा है मेरे पास 30 नंबर सिर्फ यहाँ पर आ रहा है. इट मीन्स इसकी स्टार्ट वैल्यू जो होगी वो हमेशा 30 से ही स्टार्ट होगी. तो 30 एक नंबर आ गया. 30 से लेकर वो 4 तक जा रहा है, 4 तक जाने का मतलब लेस देन 4 हो गया. तो 30, 40, 50, 30, 40, 50 ये वैल्यू ले सकता है. वो ये नंबर क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि इसकी स्टार्ट वैल्यू जो 10 है वो आपकी पूरी लिस्ट में कहीं नहीं है. सो ये नंबर तो कभी हो ही नहीं सकता. सेकंड नंबर का जजमेंट हो गया. थर्ड नंबर में बोल रहा है 50, 60, 70. 50 का मतलब हो गया इट शुड स्टार्ट फ्रॉम 3. अगर वो 3 से शुरू करे तो 5 शुड बी इंक्लूसिव होना चाहिए. जबकि अगर मैं इसको 3 से स्टार्ट करके 5 तक लूं तो ये सिर्फ 3 और 4 दो वैल्यूज ले सकता है, नेक्स्ट वैल्यू नहीं ले सकता. सो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. लास्ट में कहते हैं 40, 50 एंड 70. अब 40, 50, 70 में 60 उसने गायब कर दिया. रेंज चल रही है तो वो सीक्वेंस में चलेगी. अगर मान लो वो 40 से 2 से स्टार्ट करता है तो 2, 3 और 4 लेगा ना. 2 से 5 तक जाएगा. 2 से 5 तक का मतलब हो जाएगा 2, 3, 4. अगर 2, 3, 4 लेगा तो 40, 50 और क्या आना चाहिए था, 60. बट यहाँ कितना आ रहा है, 70. इट मीन्स ये भी वैल्यू नहीं है. सो इसका फाइनल आउटपुट क्या हो जाएगा, सेकेंड वाली ऑप्शन जो होगी that will be the final output of this question and the minimum value and the maximum value will be this. और अगर वो from की minimum maximum दोनों मांग रहा होता तो from में minimum value होती 1, maximum value होती 3. और अगर मैं 2 की बताती तो that will be 2 की हो जाती. 2 से start कर रहा है, 4 पे finish कर रहा है, तो 2 और 4 उसका minimum और maximum value हो जाएगी. That's it. Rest practice questions I'm giving you in your notes. Try them. If you will find any problem, you can ask any time from me.